Good morning, students. Now we are going to do our new topic, that is training and development. There is a slight difference between this training and development. So let us understand what is the meaning of both. So here we can say that training means equipping employee with the required skill to perform the job. Candidates are sent for training so they can perform the job in the expected manner. So meaning is very simple over here. It just means that training is simply done of an employee so that whatever the work which is assigned to that particular person can be done properly. जो काम करने के लिए उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिस पर्पस के लिए उसको काम पे रखा है किसी एम्प्लॉय को, उसको ट्रेन करने के लिए, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज training. Okay, so development also is also there, but that is a different thing. So let us just try to understand this training first. Okay, so here development refers to what? Overall growth of employee. It focuses on personal growth and successful employees development. Development much wider concept compared to the training, and training is only the part of development. So see, in development is also there is training. Development may be training hota hai, but it is will be a different kind of training. I will give you example for this. Suppose you are appointed in a company and your job is to sell the insurance policies and you are trained. Then first thing, what will be training? First, your first training will be that you should know about each and every product of the company, and that is what you are going to sell in the market. So this is the training given to you so that you can easily sell the insurance. Okay, so this is called as training. But what happen in future, the company will train you on the further parameters, like managerial training will be provided to you, then computer skills will be provided to you, communication skills will be there for your training, then ombudsman training will be there. So all these different kind of training is given to employee. So what is the need? If already person is trained and he is doing or working properly by the training, what is the need for giving him further training? और ट्रेनिंग कराने का क्या ज़रूरत है कंपनी में? दैट इज़ द क्वेश्चन. सो एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना पड़ता है. दीज एम्प्लॉयज़ आर द एसेट्स फॉर द कंपनी. ये एक संपत्ति की तरह है. दे आर जस्ट लाइक एसेट्स. तो उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग से दैट एम्प्लॉय विल डेवलप हिज स्किल्स एंड ही विल बी मोर नॉलेज ओरिएंटेड. ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस ग्रैस्प कर पाएगा. इस ट्रेनिंग से वो फ्यूचर मैनेजर बन सकता है. सो इट इज़ सिंपली डन. द डेवलपमेंट मीन्स it is that the company want that particular person to make a manager in future. So development is also important for the overall development of the employee or his growth. Okay, so this is the difference. So need for training, the first is reduced learning time. If he is given proper training, then definitely whatever the work is assigned to him, he will take less time to learn everything and he will work quickly. Okay, then better performance. Definitely the performance of the employee will be much better. Why it will be better? Because if you are trained already, then definitely your performance will be good. It will not be like you are not performing in the company, because when training is given, what happens? You will not feel any kind of hesitation while working because you are trained upon everything. So your performance will automatically better. So the performance of trained employee always better than the performance of untrained employee, as in the training program their qualities and capabilities are improved and employee get same experience of working the job before they are actually assigned the job. Third is attitude formation. So attitude is also there. See, training and development aim at molding the employees so that they can develop positive attitude for the organization. So what happens here? See, by giving training, what happens? एक एटीट्यूड डेवलप होता है एम्प्लॉय के अंदर. लाइक अगर किसी को मैनेजर बनाना है, सपोज कंपनी वांट टू मेक समबडी अ मैनेजर, देन दैट एटीट्यूड ऑफ दैट मैनेजर शुड इम्बाइब इन दैट पर्टिकुलर पर्सन. उसके अंदर वो एटीट्यूड झलकना चाहिए. सो दैट इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड, बिकॉज दे वांट दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड फ्रॉम दैट पर्सन. So here, after this attitude formation, see, attitude formation is very important also, because we can easily say that, because when an employee get trained, so what happen? His attitude will be changed. He will be taking initiatives in doing some kind of work, and definitely his attitude will also be towards more devotion toward work will be there. So by changing this attitude, they will be cooperating with each other and there will be more devotion in the work.
okay, rather than talking about something else, because once employee is trained, his devotion will be towards that particular work toward which he is assigned. Okay, then it's in or help in solving organized operational problems. See, there are some trainings which you may not have heard about. That there are some training like about some aptitude and all these kind of things, like some operational skills will be there, upon which an employee is trained simply to solve some organization related problem, and these type of employee are generally called as black belt or green belt. Okay, so in the companies they'll be known by this name. So these people are especially trained to solve the company problem or organizational problem. So while performing various activities in the organization faces various problems, like problems of absenteeism, wastage of resources, dissatisfaction of employees, and after that lack of teamwork, so etc. through the supervisory level training. So as I told you, supervisory level training means what? It will be a advanced training, just like it's just a kind of training which is basically given to the managers. ये managers को training दी जाती है इस तरह की, क्योंकि उनको ये इस तरह की situation से handle करना पड़ता है employees को, absenteeism को. So this is the thing. तो इससे क्या होता है, operational problem डे टू डे जब भी activities होंगी कंपनी की, तो उसमें problems आती हैं. ठीक है. So to solve such kind of problem, such kind of trainings are provided. So they are simply making an employee or converting them, you can say, into a manager. Okay, इसलिए trainings दी जाती है उनको. इससे वो ऑपरेशन प्रॉब्लम्स बिल्कुल टैकल कर सकते हैं. सो दिस ऑपरेशन प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड एंड रिमूव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सुपरवाइजर्स आर ट्रेंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. तो उनको पता रहता है कि किस तरह से हमको बात करनी है हमारे सबॉर्डिनेट से, किस तरह का एटीट्यूड रखना है टुवर्ड्स आर सबॉर्डिनेट्स. सो दिस इज द थिंग. देन आफ्टर दिस थिंग, मैनेजिंग मैन पावर नीड. मैन पावर मीन्स व्हाट? वो लोग जो आपके एम्प्लॉई हैं जो कि आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत होना. तो नीड है कि नहीं है, दिस इज़ अ क्रिटिकल थिंग, बिकॉज अ मैनेजर ओनली कैन से और टेल दैट वेदर द अमाउंट ऑफ वर्कर्स हु आर वर्किंग अंडर हिम आर सफिशिएंट और नॉट. कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं, तो एक और इंसान की वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है. मीन्स दे रिक्वायर मोर मैन पावर, क्योंकि वो वर्क का बर्डन सबके ऊपर रहता है. तो दिस कॉल्ड एज मैनेजिंग दिस मैन पावर नीड. तो या तो आप उसको मैनेज करो किसी तरह से, या फिर वर्क को इस तरह से असाइन किया जाए उन्हीं लोगों में कि वर्क जो ओवर बर्डन है वो एक जैसा हो जाए. जैसे कि 4 पीपल काम कर रहे हैं एक मैनेजर के अंडर, और वर्क अभी कुछ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जो जो ऐसा व्यक्ति है और ऐसा पर्सन है जो उसने काफ़ी कम काम ले रखा है, उसको ट्रेन करने थोड़ा सा और काम उसको दिया जाए, तो उससे वर्क का जो ओवर बर्डन है, जो बर्डन क्रिएट हो रहा है बाकी सब पर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वजह से, तो वो भी सब एक लाइन में हो जाएगा. मीन्स सबके पास इक्वल वेटेज हो जाएगा. तो वर्क का जो बर्डन कुछ लोगों के ऊपर आ रहा है वो कम हो जाता है. तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है मैन पावर नीड को, और ये भी ट्रेनिंग के थ्रू ही बताते हैं कि किस तरह से आप अपने अंडर एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं. तो सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल. In that case, organization hire untrained people and train them with the required skill according to the organization need. By training them, solve the long-term problem of manpower requirement. ओके, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये जब भी प्रोडक्शन वगैरह ये सब होता है कंपनी में, तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो अनट्रेंड पीपल है उनको हायर कर लेते हैं और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हो जाती है. तो मैन पावर नीड में इन्होंने यहाँ पर क्या बता रखा है, सिंपली कि किसी नए व्यक्ति को अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसको क्या होता है, उसको स्किल्स जो भी है उसको दे दो, नए व्यक्ति को आपको काम करवाना पड़ता है, तो उसको आप ट्रेनिंग देके उससे काम ले सकते हो. बट मैनेजिंग मैन पावर नीड, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखना चाहिए आप लोगों को, कि मैन पावर की नीड यानी कि इसको मैनेज कैसे करोगे. ऐसा नहीं होता है कि एवरी टाइम एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास कि एम्प्लॉय को बढ़ाओ और उसके बाद में आप काम करो. जैसे 5 एम्प्लॉय आपके काम कर रहे, तो आप सोचो कि 2 और काम पे रख लेता हूँ मैं, पर कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है इससे, कंपनी को 2 एक्स्ट्रा लोगों की सैलरी देना पड़ती है. तो यहाँ पर जो मैनेजिंग मैन पावर नीड है, अगर एक्सट्रीम नीड है देन यू शुड टेक और हायर मोर पीपल्स इन योर कंपनी. अगर ज़रूरत नहीं है, वर्क को पहले चेक कर लेना चाहिए मैनेजर को कि अच्छे से बैलेंस नहीं हो रहा है वर्क, तो क्या अंदर ही उतने ही एम्प्लॉय में क्या वर्क को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि 2 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की ज़रूरत ना पड़े. तो ये एक क्वालिटी रहती है जो मैनेजर में रहनी चाहिए. तो इसी को बोलते हैं मैनेजिंग मैन पावर नीड.
देन हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। अडेप्ट मतलब कि ढाल लेना बदलाव के साथ में। सो ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। अब टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करते रहेंगे उस पर, तो वो अपने आप को ढाल लेंगे ट्रेनिंग में उसके अकॉर्डिंग, एंड दे विल बी वर्किंग लाइक वंस एम्प्लॉय विल बी ट्रेंड ऑन समथिंग न्यू, तो वो उसको अच्छे से अडेप्ट कर लेता है फिर सिचुएशन को। कुछ भी चेंज हुआ, जैसे कि आपको एम एस एक्सेल 2003 आता था, अब कंपनी में 2010 आ गया है एम एस एक्सेल। अब आपको उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो आप उसको जल्दी से सीख जाओगे, तो अडेप्ट कर लिया। इंटरनल सिचुएशन एनवायरनमेंट चेंज हुआ कंपनी का, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करा दी और एम्प्लॉय अब अच्छे से काम कर पा रहा है। Now methods of training. So what are these methods of training? So on the job training, off the job training. So let us discuss this. So what is ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये रहता है कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, ओके, जैसे कि सपोज आप कोई फ्रेशर हैं और मैं आपको किसी जगह पे बैठा के लाइव बोल रहा हूँ कि ठीक है जाओ कॉल करो, जैसे कि से फॉर एग्जांपल इन इंश्योरेंस लाइन देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड एज इंडिया इन्फो लाइन, एक कंपनी है इंडिया इन्फो लाइन। उसने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था एमबीए स्टूडेंट्स के लिए एक इंटर्नशिप के नाम से, और वहाँ पर वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक एम्प्लॉय कंपनी के अंदर बैठेगा और वो टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। जो भी काम उसको असाइन किया गया है, ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्क एंड ही विल बी डूइंग मिस्टेक, वो मिस्टेक्स करेगा, बट मिस्टेक्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अलाउड रहती है, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल लाइव कर रहा है, बिल्कुल काम परफॉर्म करके सीख रहा है। सो एक्चुअली वो काम को परफॉर्म कर कर सीखना, गलतियां करते करते, तो ये जो चीज़ रहती है इसी को बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, जॉब पे रहकर आप ट्रेनिंग कर रहे हो है। ओके, ऐसा नहीं कि कहीं पे आपको अलग जगह बैठा दिया और आपको ट्रेन किया जा रहा है, लाइव सिचुएशन में आपको बैठा दिया गया है और आपको बोल दिया कि वर्क स्टार्ट करो, और आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो उसको करेक्ट किया जा रहा है। इसी को बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो व्हेन द एम्प्लॉयर ट्रेन while they're performing the job, then it is known as on the job training. Under this method, the employee learn by doing. This method is suitable only for technical jobs, and the advantage of the method is employee can learn practical problems when working on the job. तो यस, यहाँ पर एम्प्लॉय बिल्कुल प्रैक्टिकल लर्निंग लेकर जाता है, बिकॉज अगर आप कंपनी के अंदर बैठे हुए हो और रियली वर्क कर रहे हो वहाँ पर, तो आप रियल लाइफ सिचुएशंस फेस कर रहे हो, कंपनी की प्रॉब्लम्स आ रही है आपको काम करते वक्त, और आप वो डिस्कस कर रहे हो अपने मैनेजर के साथ में, और मैनेजर आपको बता रहा है कि सिचुएशन को कैसे डील करना है। तो आप एक लाइव सिचुएशन में सीखते हो और फिर धीरे 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 एडजस्ट हो जाते हो वहाँ पर, और फिर आपको मैनेजर से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही कंपेटेबल हो जाते हो। तो दिस इज़ द बेसिकली द मीनिंग ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बेसिकली ये ट्रेनिंग मैनेजर्स के लिए रहती है। ऑन जो जॉब बेसिकली किसके लिए रहती है, कि एम्प्लॉयज़ के, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए रहती है, जो कि फ्रेशर्स रहते हैं उनके लिए रहती है ना। ऑन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग किसकी रहती है, मैनेजर्स की। तो मैनेजर्स यहाँ पर क्या करते हैं, मैनेजर्स को यहाँ पर फ्री कर दिया जाता है फ्रॉम ऑल द वर्क बर्डन। उसको फ्री करके कहीं और भेजा जाता है, एक अलग कहीं ऑर्गेनाइज होती है मीटिंग, और वहाँ पर उसको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके वहाँ पर उसको सेंड किया जाता है। सो मैनेजर शुड, फर्स्ट थिंग विच टू बी नोटेड इज मैनेजर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ वर्क, बिकॉज इफ द मैनेजर विल बी एट वर्क, अगर वो कंपनी के अंदर है, देयर विल बी सम वर्क कमिंग टू हिम, कुछ ना कुछ काम आता ही रहेगा उसके पास, तो फ्री नहीं रह पाएगा। तो उसको फ्री करना ज़रूरी है। तो उसको फ्री करके कहीं भेजा जाता है कि कंपनी में वो नहीं रहेगा, कहीं बाहर जाएगा, किसी होटल में, सेमिनार हॉल में उनकी ट्रेनिंग अरेंज करी जाती है। तो वहाँ पर जाकर वो एक पूरा दिन ट्रेनिंग लेकर आते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो ऑफ द जॉब training means training the employees by taking them away from the work position, which means employees are given a break from the job and sent for training. This method of training is more suitable for managerial job positions. Okay, now apprenticeship program training. What is apprenticeship? Apprenticeship किसको बोलते हैं, see the workers seeking to enter skill job are sent to the for entrepreneur apprenticeship training which is on the job method of training. In the apprenticeship program, a master worker or trainer appointed who guides the worker or learner regarding the skill of job. The master worker performs the job and the trainee observes him performing. When the learner learns all his skill and slowly starts taking up the job step by step, and master worker becomes the observer. When the trainee becomes perfect in doing the job, then the worker goes and trainee gets full charge of the job position. So here this is actually a kind of training which is provided to the engineers who are working
in the company. Suppose when a new engineer enters a company, what happens? Apprenticeship training program is given to him, under which what happens? He will be put under a master person. So that master person is having lot of knowledge of everything. So he will be. It will be like that master will be performing the things, and this trainee is going to just follow his instructions, and definitely he's going to observe that how that master is working. And once that master is satisfied that that person is understanding a lot of good things, so what he will do, he's going to tell him to work. Then that person who is getting trained, he's going to work. And this master worker or not master worker, master person is going to observe this person, that whether he's doing work completely in a right manner or not. अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? Then definitely he will shout at him, or maybe he will take some corrective actions against it. So उसको ट्रेन करना पड़ता है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि वो इंसान ठीक से काम कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन, वो उसको कंप्लीट चार्ज दे देता है, और कंप्लीट चार्ज देने के बाद वो इंसान काम करने लगता है, और उसकी पूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है फिर उस वर्क की। अगर कुछ मिस्टेक होती है वहाँ पर, तो वो उसके लिए आंसरेबल रहेगा। जब तक ये ट्रेनिंग चल रही होती है, जब तक ये मास्टर पर्सन काम करके उसको दिखा रहा है कैसे काम किया जाता है, तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर पर्सन की रहती है। और एक बार ये सिखा दिया उसने, तो फिर वो किसके पास चल जाती है? दिस पर्सन हु इज टेकिंग दिस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जो अप्रेंटिसशिप कर रहा है उसके पास चल जाएगी फिर सारी चीज़ें। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस इंटर्नशिप, इंटर्नशिप इज अ सिंपल थिंग। Again, this is done by the MBA students. So internship is what? It is a kind of agreement between the professional institute like MBA institute हो गए and the employ and the corporate sector, where professional institutes send the student to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institutes. Under this training program, the organization get people with fresh idea and latest knowledge, and the company have to pay very less amount of salary. So what happen in internship? What you get? Stipend as a salary, स्टाइफंड मिलता है। तो स्टाइफंड एक छोटा सा अमाउंट रहता है, तो कंपनी को एम्प्लॉय बहुत सस्ते मिलते हैं यहाँ पर। द थिंग इज दैट इन इंटर्नशिप, दिस इज़ बेसिकली काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन दिस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लाइक एमबीए के कॉलेज हो गए, और वो भेजते हैं अपने स्टूडेंट्स को किसी कंपनी में, ताकि वहाँ पर जाकर वो काम सीख सकें, थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर वो कंपनी वहाँ से कंपनी से आएँ, उनके एमबीए को कंप्लीट करें, और उसके बाद जब वो मार्केट में जाएंगे तो उनके रेज्यूमे पे लिखा होगा on the this thing that they have taken this internship program for so and so company, किसी भी कंपनी के अंडर उन्होंने ये प्रोग्राम कर रखा है, तो उससे उनको थोड़ा वेटेज मिलता है, दे गेट सम वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो इंटर्नशिप इज जस्ट गिवन टू गिव सम थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट एनी काइंड ऑफ वर्क, लाइक इंश्योरेंस का वर्क हो सकता है, बैंकिंग का वर्क हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप। देन इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन लर्निंग और सॉरी ट्रेनिंग। हियर दैट एम्प्लॉय हु हैज़ जॉइन द कंपनी, जब एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है कंपनी, तो उसको फैमिलियर किया जाता है कंपनी से, उसकी सराउंडिंग से, उसके एम्प्लॉयज़ से, मतलब पूरा एक एनवायरनमेंट, कंपनी क्या है उसके बारे में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आके बता के जाते हैं कि हमारा ये काम है। लाइक पर्सन आएगा एचआर डिपार्टमेंट से, ही विल टेल यू दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, और फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो लाइक सेफ्टी डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, security department. So from everywhere one person will come, and he is going to tell about his particular profile. So what happens? The employee get familiar with the company. ऐसा फैमिलियर करना ज़रूरी रहता है कंपनी में, ताकि एम्प्लॉय को यूँ ना लगे कि वो एक नया व्यक्ति है बिल्कुल इस कंपनी में और काम कर रहा है। एक बार उसको फैमिलियर कर देते हैं तो वो आपका पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है, वो समझने लगता है। तो दिस इज़ द थिंग दैट इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज़ गिवन। ओके। सो इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर फैमिलियर किया जाता है एम्प्लॉय को अबाउट द कंडीशंस। So induction or orientation is the process of receiving and welcoming an employee when he first joined the company, and giving him the basic information he needs to settle down quickly and happily start work. Okay, the same thing I told you. Now after this, come to the important part. Yes, this one, vestibule school. Sometimes this thing comes in case study also.
separately, like which type of training is provided. So one is definitely apprenticeship program, जो आपने देखा था अप्रेंटिसशिप या फिर इंटर्नशिप या फिर वेस्टिब्यूल, इनमें से तीन में से केस स्टडी में कोई सी भी टाइप की आ सकती है। दे कैन आस्क इंटर्नशिप में एमबीए के इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को पहुंचा रहे होंगे, ओके, और वो लोग उसको जॉब ऑफर करेंगे। तो ये जो चीज़ है वो दिखता है कि एमबीए के इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात वहाँ ज़रूर होगी, तो समझ जाना इंटर्नशिप की बात हो रही है। अगर किसी मास्टर पर्सन कोई किसी एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहा है और वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है फिर उसको सिखा रहा है, तो ये जो बात होती है अप्रेंटिसशिप की होती है। अब वेस्टिब्यूल की करते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है? व्हेन द जॉब इज़ वेरी क्रिटिकल, लाइक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, जैसे कि एरोप्लेन उड़ाना। तो एरोप्लेन, फ्लाइंग दिस एरोप्लेन इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। सो डायरेक्टली यू कैन नॉट गिव अ पर्सन कि ये लो एरोप्लेन एंड फ्लाई इट, इसको उड़ाओ। तो किसी भी नए व्यक्ति को एरोप्लेन नहीं पकड़ाया जा सकता, ट्रेन नहीं पकड़ाई जा सकती। अगर एक्सीडेंट कर देगा तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो थिंग इज़ दैट ही विल हैव टू टेक दिस ट्रेनिंग कॉल्ड एज वेस्टिबल स्कूल ट्रेनिंग। सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पर एक डमी स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहाँ पर एम्प्लॉय बैठकर एक रियल एक्सपीरियंस लेता है एयरक्राफ्ट उड़ाने का या ट्रेन चलाने का। तो वो उसको एक एक्सपीरियंस बेसिस पे लेता है और फिर उसके बाद उसको रियल एरोप्लेन या फ्लाइट्स उड़ाने के लिए दिया जाता है। सो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल क्रिएट किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? बिकॉज द मशीनरी इन द कंपनी आर ऑफ ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसे की होती है, बहुत ज़्यादा रुपया लगता है। तो वहाँ पर उसके एक डमी क्रिएट किया जाता है जहाँ पर बैठा के उसको ट्रेन किया जाएगा, ताकि उसको, क्योंकि उसको डायरेक्टली आप उस मशीनरी पे नहीं भेज सकते। अगर नई मशीनरी पे भेज दिया तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ओके, नाउ वेस्टिबल स्कूल्स मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और generally, and this is the expensive and delicate machinery are involved, then employee avoid using on the job methods of training. A dummy model, here a dummy model of machinery is prepared, एक dummy बनाया जाता है instead of using original machinery employee। यही बात मैंने बताई, are trained in dummy models। Sometimes the accountants who have to make entries in the inventory register or cash register, they first supplied the duplicate register with the same columns as in the original register, and when they become perfect in making entries in duplicate register, then they hand over original register। अब यहाँ पर जो एंट्री होती है रजिस्टर की, ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि वहाँ पर अगर गलती हो जाएगी तो पूरा बैलेंस शीट ठीक से तैयार नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर गलतियों, एरर को नहीं होने के लिए एक डुप्लीकेट वर्क किया जाता है। मतलब जब भी कोई डुप्लीकेशन चीज़ आपको दी जाती है और उस पर ट्रेन करने के लिए कहा जाता है, सो बेसिकली कंपनी इज बेसिकली ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल फर्स्ट, देन दे विल प्रोवाइड यू सच काइंड ऑफ लाइव machinery or live kind of training. So it basically done in like aviation sector, all these aeroplanes and all these machines like train and all, so it is very difficult to handle। तो वहाँ पर कॉस्टली वाली मशीन की बात होगी केस स्टडी में, कि केस स्टडी में कहेंगे कि मशीनरी बहुत महंगी थी, इसलिए उनको एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई गई और वहाँ पर उसको ट्रेन किया गया एम्प्लॉय को। अगर इस तरह की बात केस स्टडी में होती है, इफ़ यू फाइंड सच ए काइंड ऑफ थिंग, तो कौन सी ट्रेनिंग लिखनी है आपको? वेस्टिबल स्कूल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग रहती है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेनिंग रहती है, इसको भी ऑफ द जॉब मेथड ही बोलते हैं, क्योंकि ये आपको अलग से कहीं पर बैठा के डमी पे ट्रेन कराया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर स्टाफिंग। थैंक यू।